file name will be same, but it will be like s underscore. For example, let us go to some or the other. Let's go to Adobe, since like we have to process this. Since files are yet to we have here. Okay, for ACS we have this control file, correct? Yes. The file name is correct, same, but if you see there's a s underscore over here. We same like a data file, but it will not consist of anything. So if you open this also, this file has nothing. It's just an empty control file. This is just to start the pipeline from landing to cleansed. What happens if we put this and upload this in our landing container? You know this landing container, right? Landing container, you have to go to the store. Okay? So go to the portal.azure.com and go to the storage part. Okay, so we have this landing P001. This is a landing container. Okay. Okay. Here we have for everything, we have a landing container over here. Okay. Go to delete file hash. If you see, we have all these files over here. So it gets uploaded over here. And once if we place a control file, okay, then it will this ADF pipeline is there, right? The monitor one. This will start. Yeah, automatically. Once the pipeline is like to start this pipeline, we need this control file. Got it? Okay. 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 So after this processing, the landing to cleansed will after the completion of that, the cleansed to curated goes. That's the Okay. flow. Okay, and then the cube refresh happens. Okay, so now landing to cleanse is done and cleanse to curated is done. So that if you want to know also, you can go inside this pipeline. See, there will be two. Okay, if you see here, which one? Oh, landing to cube refresh, right? We copy 36. Yeah, if you see here, master landing to cleanse and cleanse to curated. Okay. Right? So both has a separate process. Landing to cleansed has a separate process. Okay, it has 5 sequences. Okay, and cleansed to curated has 10 sequences. ओके, ये फिक्स रहता है क्या सीक्वेंस? Hmm? Yeah. सीक्वेंस फिक्स रहता है या चेंज होता रहता है डेली? नहीं नहीं सीक्वेंस फिक्स रहता है एक अच्छा. एक सीक्वेंस में लिस्ट ऑफ जॉब्स रहता है ओके. ठीक है और वो जॉब्स विल बी हैविंग ईच जॉब विल बी हैविंग सम नोटबुक्स ओके. और वो नोटबुक्स ऐसे जनरेट करता है फॉर ईच जॉब दैट इट हैज अब ऐसे इसके पास बहुत सारी फाइल्स है ठीक है तो उसको उस फाइल्स में रॉ डेटा रहता है उसको फिर क्लेंस करके फिल्टर करके एक टेबल में बिठाते हैं वो लोग क्लेंस टेबल ठीक है वो मर्ज मर्ज वगैरह करते हैं ओवरराइट करते हैं मर्ज करते हैं ओके उसके बाद व्हाट दे विल डू इज फ्रॉम क्लेंस दे विल गो दे विल पुट मोर बिजनेस फिल्टर कंडीशंस एंड दे पुट इट इन क्यूरेटेड लेयर ओके. ठीक है और क्यूरेटेड से देन वो अगर आपको फ्लो पता रहे क्यूरेटेड से देन दे गो टू द बिजनेस रिपोर्ट लेयर पीआरआर बोलते हैं ठीक है तो वो पीआरआर विल बी शोन इन माइक्रो स्ट्रेटेजी रिपोर्ट्स टू द यूजर्स ओके. पीआरआर. पीआरआर या उसको मतलब और अगर आपने आर्किटेक्चर अगर पूरा पढ़ा हो तो आफ्टर क्यूरेटेड आल्सो वी हैव वन मोर लेयर राइट you have यस. read that ओके फिर ये आपने पढ़ा है जो आर्किटेक्चर का जो फ्लो है बेसिकली द पाइपलाइन वॉक थ्रू ये वाला जो है इसको अगर आप पढ़ोगे
देखो ये लैंडिंग टू क्लेंस देते हैं, ठीक है, ऐसे क्लेंस टू क्यूरेटेड, ठीक है, ओके हाँ क्लेंस टू क्यूरेटेड ये दो पाइपलाइन है ना, ये डीई की पाइपलाइंस है, you have gone through properly, ये जो पूरा का पूरा एज्योर डेटा लेक तक जब ये जाता है, ये पाइपलाइंस के बारे में, राइट। ऐसे ही यू हैव वन मोर, हमने एक और आर्किटेक्चर है, या एग्रीगेटेड लेयर, एजीजी, ओके ठीक है। एजीजी क्या करता है, इट्स अ बिजनेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। So see, it this is pre-landing, then it goes to the landing layer, which is that landing container, ठीक है। और उसके बाद it has a cleanse layer, where it has a standardized and cleansed data. After that, it goes to the curated layer, where we have harmonized and unified data, or at domain level, means business domain, business के related data, जहाँ पर हर एक चीज एक different cleanse table से मर्ज होकर एक पे फिर एक क्यूरेटेड लेयर बनाती है सारे बिजनेस कंडीशंस के साथ, ठीक है। आफ्टर दिस इट गोज टू द एग्रीगेटेड लेयर, इसमें वी कन्वर्ट दोस क्यूरेटेड टेबल डेटा इनटू रिपोर्ट्स, या सम और हाँ एग्रीगेशन लेयर बोलते हैं उसको, लाइट हाउस लेयर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इस टेबल्स को बोलते हैं लाइट हाउस डॉट any of the aggregation tables, okay। इसमें टेबल्स आती है क्यूरेटेड डॉट टेबल्स, और क्लेंस में क्लेंस डॉट टेबल्स, ठीक है ना। और इससे पहले भी और एक है रॉ, ठीक है, रॉ डॉट टेबल, लैंडिंग का मतलब रॉ बेसिकली, ठीक है। ओके। तो ये एक फ्लो है, ठीक है। अब इसमें you have for data ingestions you have ADF, you have SFTP, that is the shared array. One more we have Informatica, एक और MuleSoft which is an API. There is actually one more now जो अभी इधर include नहीं किया है, that is known as Blue Yonder. That is for JDA files. Okay. ठीक है, वो अभी recently चला था, ये बहुत पुराना PPT है, ठीक है। तो उसमें Blue Yonder अभी included नहीं, ठीक है। but there's one more for data ingestion, that is Blue Yonder, ठीक है। तो ये layers हैं, okay। तो ये layers का जो flow है, the pipeline only will work from landing to cleanse and cleanse to curated, that's it. Curated to aggregation layer क्या करता है, वो एक लाइट हाउस, ये जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है ना लाइट हाउस में, वो उस पे कन्वर्ट करता है फ्रॉम क्यूरेटेड टू एग्रीगेशन लेयर, ठीक है। और उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटेजी क्या करता है, एक उसका वेब वर्जन बनाता है, where the already it has been developed by the MicroStrategy developers, तो वो एक अच्छे से रिपोर्ट बनाता है which goes to the end user। अच्छा, वो जो फाइनल में हम लोग रिपोर्ट देखते हैं और वहां से वैल्यू मैच करते हैं, वो डॉसियर बोलते हैं, यस यस यस, है ना। तो जो ये एग्रीगेशन लेयर है, वो हम लोग MSTR में डेवलपर में वी गो टू द RDP एंड वी रन दैट रिपोर्ट, राइट, BSF रिपोर्ट, एडॉक रिपोर्ट बोलते हैं उसको, वो एग्रीगेशन लेयर की लेयर है। और एक चीज होती है जो यूजर्स को जाती है एक अच्छे फॉर्मेट में, PVH का लोगो वगैरह डाल के, करेक्ट, अच्छा, उसको हम डॉसियर्स बोलते हैं, ओके। ये टेक्निकल टर्म है, दोज आर नोन एज डॉसियर्स और फ्लैशेस और सब्सक्रिप्शंस, ओके। ये टर्म बहुत सुना होगा। हाँ, ये जो एक रिपोर्ट हम लास्ट में देखते हैं PDF का, जहाँ पे हम वैल्यू मैच करते हैं, वो डॉसियर और जो यूजर को जाता है वो दोनों सेम ही होगा ना, या डिफरेंट रहता है? सेम। अच्छा, सेम, ओके। तो उसको पहले से चेक करने के लिए, अगर आपने DSF में देखा होगा, they go over here, they log into this MicroStrategy web, ठीक है, इसमें मतलब यूजर नेम और पासवर्ड डाल दें,
अब मेरा तो ऐसा ही है, मैंने कल आपको भी बोला था चेक हाँ करने के लेकिन लिए। आई मैं जस्ट लॉगिन नहीं हो रहा है ना भाई मेरा। सेम ऐसे डाल के देखो, MSTR 1234 में हो जाएगा आई गेस, नहीं मुझे नॉट रॉन्ग। एक्चुअली मुझे दूसरा वेब दिया था। कल हेमंत ने मुझे दूसरा वेब दिया था यूआरएल, उससे लॉगिन हो रहा था। अच्छा, क्या URL था वो? एक मिनट एक मिनट भाई, मेरा वो लॉक हो गया है पीवीएच। कोई नहीं। ये है यूआरएल है तुमको। Wait a minute. Did they trigger NA1 manually? या NA0 किया इन लोगों ने? यस आई एक्चुअली मैं जब ये यूआरएल ओपन कर रहा हूँ MSTR वेव कंटिन्यू, तो मुझे लाइट हाउस का आ रहा है, फिर वहाँ पे जो फोल्डर आ रहा है शेयर्ड माई रिपोर्ट। Can you share your screen? I cannot see. ओके टीम्स भी शेयर करता हूँ। यह स्क्रीन शेयर किया। अच्छा, ये आ गया है आपको, इसका मतलब you have the access. Okay, now you do not require web STD. STD वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है वो लिंक में कि मैंने आपको STD दिया है। Instead of STD, now you can directly access with web. Got it. इसको आप एक उस पे वो कर लो। Now you have your web access. मैं आपको जो दिया था वो web STD का। ओके ठीक है, ये ऑलरेडी किया हुआ है। और इसमें हम कहाँ से रिपोर्ट देखते हैं? बताता हूँ आपको पहले ना, लेट्स गो विद द फ्लो। ओके फर्स्ट मैं मतलब आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, एक तो ठीक है। आपको पाइपलाइन समझ में आ गई, राइट? यू यस यस अंडरस्टूड व्हाट इज हाँ पाइपलाइन समझ में आ pipeline? गया। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ये था कि ACS जॉब में डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइन से हम ये देखते हैं कि सक्सेस है या नहीं, बस पाइपलाइन से रन कर रहे कि नहीं, उसके रिलेटेड फिर हम डेटाब्रिक्स में देखते हैं सक्सेस है कि नहीं। बस यहाँ पे Correct. ऐसा कुछ हम चेक करते हैं DSF में मैनुअली भी या रन yes, करते हैं? DSF में भी चेक कर सकते हैं। देखो, हर एक का एक बैच आईडी होता है। ठीक है, स्क्रीन अगर शेयर आपको कर वो देना चेक भाई। करना है, हाँ ठीक है। या आई जस्ट शो माय स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ आपको वो भी कैसे चेक करना है पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, SSMS के लिए। आई शो